Ignited Minds Tutorials brings a comprehensive series of videos on quadratic equations and mathematics for Class X students. Whether you study under CBSE, Maharashtra State Board, or any other educational board, these videos will help you strengthen your knowledge in this topic. Quadratic equations, an essential part of Class X mathematics, often pose challenges for students. This series aims to simplify the subject, making it easier to grasp. The videos cover various aspects of quadratic equations, including factors, roots, discriminate, nature of roots, and solving word problems. Designed by experienced educators, the tutorials provide step-by-step explanations, making complex concepts more understandable. Detailed examples and practice questions help solidify your understanding and enhance problem-solving skills. The videos also include real-life applications of quadratic equations, highlighting their significance beyond academics. Accessible on YouTube, these tutorials offer the convenience of learning at your own pace and convenience. You can pause, rewind, and rewatch any part as many times as you need, ensuring a thorough understanding of the topic. So, if you're struggling with quadratic equations in mathematics, head over to Ignited Minds Tutorials YouTube channel and take advantage of this valuable resource. Enhance your knowledge, build confidence, and ace your exams with these comprehensive video lessons. Start igniting your mind today. Okay, so बच्चा पार्टी वी वर डूइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपन PYQs कर रहे थे दोनों भी बोर्ड्स के। आज अपन ज़्यादा करके प्रॉब्लम्स को देखेंगे, ठीक है। सो जो भी प्रॉब्लम्स आए हुए दोनों भी बोर्ड से पर ईयर, सो विल स्टार्ट विथ दिस क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम CBSE 2023 का सवाल है। देखो इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। इक्वल रियल रूट्स कब होगा बोलो? when it be equal, when it will the roots be equal और real, क्या जीरो रहेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac जब आपका जीरो, तो आप इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो the roots are equal and real, roots are real and equal, roots are real and equal when determinant is equal to 0, that is b square minus 4ac is equal to 0, ठीक है। क्लियर है? ओके भाई साहब, इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, दिस इज गिवन एज px। पहले इक्वेशन को उतारते हैं, देखो px x माइनस 2 प्लस भाई साहब 6 इज इक्वल टू 0 है। तो अपन इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तेरे px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कंपेयर। भाई साहब किसके साथ कंपेयर करेंगे? वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? p। b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? माइनस 2p। और c की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? 6, ठीक है। अभी अगर हम करते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाए? 0। तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a दैट इज p इंटू c दैट इज 6 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी हाउ मच? 4p का स्क्वायर माइनस 24p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका 4p स्क्वायर इज इक्वल टू 24p। तो यहाँ पे कैंसिल और ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 4p इज इक्वल टू 24। सो देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। तो आपका भाई साहब देयरफॉर p की वैल्यू कितनी हो गई? 6। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रियल रूट्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आर वी क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे एक स्टेट बोर्ड का प्रॉब्लम उठाते हैं, ठीक है। 2019 में आया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में। 2 taps together can fill a tank in 3 1/13 minutes, ठीक है।
द स्मॉलर टैप टेक्स 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. How much time does each tap take to fill the tank completely? मैंने आपको बोला था कि आपको जब भी सवाल मिले, किस चीजों पे सवाल मिले, लेट्स से आपके प्रोडक्ट पे, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पे मिले, या मिले भाई साहब रेसिप्रोकल्स पे, ठीक है, रेसिप्रोकल्स पे, ठीक है, और कुछ ऐसा चीज जिसमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्पेसिफिकली यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, स्क्वायर्स पे, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, ऐसा अगर मिले, ठीक है। सो इस तरीके के जब भी आपको मिलेंगे, आप साइमल्टेनियस इक्वेशन से नहीं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से नहीं, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जब भी आपका वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहता है, या जब भी आपका ऐसा टैप फिलिंग वाला कोई प्रॉब्लम रहता है, तो आपका ऑटोमेटिकली कौन सा केस बनता है? देखो, रेसिप्रोकल का केस बनता है। समझ में आ रही है? ठीक है, ऑटोमेटिक। जैसे मैं अगर बोलूं कि लेट्स से सोहम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, सोहम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, ठीक है, तो इसका स्ट्रेट अवे मीनिंग क्या हो जाएगा? एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/10, ठीक है। तो सोहम इन 1 day विल डू 1/10 ऑफ द वर्क, ऐसा हो जाएगा भाई साहब। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वर्क, तो यहां पे तुमको क्या मिल रहा है? रेसिप्रोकल। और मैंने आपको पहले ही स्पेसिफाई किया, देखो, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा, रेसिप्रोकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, या स्क्वायर रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा, वहां पे आप भाई साहब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ना कि आपके पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ठीक है। मतलब देखो, दोनों भी कर सकते हो, लेकिन आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली सिचुएशन बन रही है। अभी जैसे समझो, अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि लेट्स से अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 15 hours, ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं, तो देयरफॉर हम अगर यहां पे बोले इन 1 hour द टैंक कैन फिल हाउ मच? द टैंक कैन फिल 1/15 ऑफ द टैंक, ये हो जाएगा भाई साहब। फिर से देखो, रेसिप्रोकल वाली सिचुएशन बन रही है, ठीक है, रेसिप्रोकल वाली सिचुएशन बन रही है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को करना है। 2 taps together can fill a tank completely in this much minutes, ठीक है। The smaller tap takes 3 minutes more than the bigger tap to fill the tank. तो अपन क्या मान लेंगे? let the smaller tank take, ये सवाल करने का तरीका है भाई साहब, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते कि एक टैप अगर इतना टाइम लग रहा है, दूसरा टैप इतना टाइम लग रहा है, तो भाई साहब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर दोनों आपने एक साथ चालू कर दिया तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप पहले दिखाएंगे कि 1 घंटे में ये इतना भरेगा, 1 घंटे में ये इतना भरेगा, तो दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना भरेंगे? जितना आता है उसका रिवर्सल हो जाएगा आपका टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो लेट द स्मॉलर टैंक टेक x hours टू फिल द टैंक, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे द स्मॉलर टैप टेक्स 3 minutes मोर देन द बिगर टैप, तो बिगर टैप, या हम यहाँ पे बिगर टैंक बोले, ठीक है। लेट द स्मॉलर टैप, लेट द बिगर टैप टेक x hours टू फिल द टैंक। तो भाई साहब स्मॉलर, यहाँ पे भाई साहब स्मॉलर कितना हो जाएगा? देयरफॉर द स्मॉलर टैप टेक्स कितना हो जाएगा बोलो? x + 3, यहाँ पे आवर्स लिख गया मैंने गलती से भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा मिनट्स में है ना सवाल। x + 3 minutes टू फिल द टैंक। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। अभी मेरा आपसे सवाल है कि देयरफॉर इन 1 minute द बिगर टैंक फिल्स हाउ मच? बताइए, द बिगर टैंक फिल्स कितना ऑफ द टैंक? बोलो 1/x ऑफ द टैंक, ठीक है, 1/x ऑफ द टैंक। समझ में आता हम पीपलम? ओके, ठीक है, ओके। क्या हो गया भाई साहब, तुम क्यों नहीं चालू हुए? ठीक है, ओके। श्री, बिगर टैप का बताओ। इन 1 minute द बिगर टैंक, टैंक कहां लिख रहे हैं भाई साहब हम यहाँ पे? टैप, ठीक है। इन 1 minute द स्मॉलर टैप, बता कितना हो जाएगा? बता फिल्स कितना हो जाएगा? एंड 1/x + 3 ऑफ द टैंक, 1/x + 3 ऑफ द टैंक। समझ में आता हम बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके। सो इन 1 minute
स्मॉलर टैप प्लस बिगर टैप, स्मॉलर टैप प्लस बिगर टैप टुगेदर कैन फिल कितना हो जाएगा बोलो, 1/x प्लस 3/8 ऑफ द टैंक। समझ में आता है भाई साहब? ठीक है। सो इन 1 मिनट द स्मॉलर टैप प्लस बिगर टैप टुगेदर कैन फिल दिस मच ऑफ द टैंक। ठीक है, ओके। सो यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, 1/x प्लस 3। तो ये हो गया आपका कितना, x इंटू एक्स प्लस 3। तो ये हो गया भाई साहब आपका x प्लस 3 प्लस x, है कि नहीं? सो यहां पे हो गया कितना आपका भाई साहब, 2x प्लस 3 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 3। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। सो इन 1 मिनट द स्मॉलर टैप प्लस बिगर टैप टुगेदर कैन फिल दिस मच ऑफ द टैंक। अभी आते हैं हम सवाल के इस कंडीशन पे। देखो, 2 टैप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस मच मिनट्स। ठीक है, तो एज पर द गिवन कंडीशन, ठीक है भाई, ये दोनों मिलाकर कितने मिनट में भर रहे हैं, 13 3 39 40 बाय 13 मिनट्स में भर रहे हैं। ठीक है, तो एज पर द कंडीशन, ठीक है, the two taps together can fill the tank in कितना भाई साहब बोलो, 40 by 13 minutes। so therefore in 1 minute कितना भरेंगे, both together can fill भाई साहब, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कैन फिल। जैसे ही आप 1 पे आते हैं ना भाई साहब, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो पूरा दोनों मिलाकर इस टैंक को कितने में भर रहे हैं, 40 by 13 मिनट्स में भर रहे हैं। तो जैसे ही भाई साहब आप 1 मिनट की बात करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो इन 1 मिनट बोथ टुगेदर कैन फिल कितना भाई साहब आपका, 13 by 48 ऑफ द टैंक। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? इन 1 मिनट बोथ टुगेदर कैन फिल 13 by 48 ऑफ द टैंक। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता हूं? ओके। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना होता है, देखो 2x प्लस 3 x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 13 by 40। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। सो यहां पे हो गया कितना, 40 इंटू 2x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई साहब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, या तो इसको ये वाले को पहले ले लो, यहाँ पे 13 इंटू, सो देयरफॉर आपका हो गया 13x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 40 इंटू 2x प्लस 3। ठीक है, अभी तो भाई साहब जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं वैसा करेंगे। 13 इंटू एक्स कितना हो गया, 13x का स्क्वायर, 13 3 कितना हो गया बोलो, 39x, इधर कितना है बोलो 80x, और इधर कितना हो गया बोलो 120। ठीक है, सो इधर हो गया आपका 13x स्क्वायर, 39 माइनस 80 कितना हो जाएगा बोलो 41, ये हो गया आपका माइनस 41x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका भाई साहब फैक्टराइजेशन से सवाल सॉल्व करना है। देखो 13 वैसे भी प्राइम नंबर है, इसका क्या ही फैक्टराइजेशन कर लोगे भाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर निकालोगे, इतना सब तामझाम करने से अच्छा 120 का निकालो फटाफट। 120 का भाई साहब कितना होता है, 260 जा 230 जा 215 3 5 5 1 जा, और रहा भाई साहब इसके 13 से मल्टीप्लाई करने की बात, तो सिर्फ 13 का कोई फैक्टराइजेशन है ही नहीं भाई साहब, प्राइम नंबर है अपने आप में। ठीक है, तो ये क्या करोगे, इंटू 13 कर दोगे। अभी इन्हीं फैक्टर्स में से तुमको क्या फाइंड आउट करना है, 41 फाइंड आउट करना है। ठीक है, 13 2 2 4 4 2 8 8 3 24 13 5 65 65 माइनस 13 5 65 3 2 6 6 2 12 12 12 24 65 माइनस 24 कर लो भाई साहब, कितना आ जाए, आ गया ना भाई साहब। ठीक है, देखो 13 5 65 और ये भाई साहब कर लो 2 2 4 4 2 8 8 3 24, तो 65 माइनस 24 तुमको कितना दे रहा है 41। क्या ही समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये आपका कोई भी नहीं देखने वाला कि आपने कैसे निकाला है, नोबडी इज गोइंग टू लुक एट इट। ठीक है, आप भाई साहब इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एलसीएम निकालोगे, इससे अच्छा आपको मालूम ही है भाई साहब 13 आपका प्राइम नंबर है, वैसे भी अगर मैं उसका फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे को 13 वैसे ही मिलने वाला है,
तो क्यों ना हम 120 का फैक्टराइजेशन करते हैं। अभी ये मेरे टोटल फैक्टर्स हो गए जिसके पर मतलब दुनिया भर का कॉम्बिनेशन लगाकर मुझे क्या लाना है, 41 लाना है, ठीक है। जस्ट अ शॉर्टकट, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू लुक एट दिस रफ वर्क ऑफ योर्स, ऑल आर गोइंग टू सी हाउ यू हैव सॉल्व्ड इट, ठीक है। तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 41 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे -41 है, -41 मतलब हो जाएगा -65 प्लस 24, तो -41x को अपन क्या लिख सकते हैं, -65x प्लस 24x। चलिए वैसा सवाल को आगे बढ़ाते हुए, ओके 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 ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका कितना, 13x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। चलो भाई साहब यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, 13 का कॉमन निकाला, 13x को कॉमन निकाला हमने, तो यहाँ पे कितना बचा, x माइनस 5 प्लस 24 इंटू एक्स माइनस 5, ठीक है भाई साहब, 24 5 120 होता है, ठीक है। दोनों कॉमन फैक्टर्स मिल गया आपको, तो यहाँ पे बच गया आपका x माइनस 5 और इधर कितना हो गया आपका 13x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सो आइदर आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 13x plus 24 is equal to 0, which means either x is equal to 5 or x is equal to minus 24 by 13. x is equal to 5 और x is equal to minus 24 by 13. Are we clear on this one people? ये हो नहीं सकता क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स मिनट्स आपका कभी भी भाई साहब यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकता है, सिंस टाइम cannot be negative, so therefore we can say that x is not equal to minus 24 by 13, so therefore x is equal to 5 minutes, ठीक है। so भाई साहब आपका बिगर टैप, therefore आप बोलेंगे भाई साहब बिगर टैप takes how much, takes 5 minutes to fill the tank, and the smaller tap takes how much हम बच्चा पार्टी, x plus 3, that is how much, 5 plus 3, that is 8 minutes to fill the tank, 8 minutes to fill the tank. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हम, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई साहब। किसका फोन बजा, श्री, चलो भाई साहब ये वाला सवाल निपटाना है, आपके सीबीएसई में आया हुआ है, 2017 का सवाल है, चलिए फटाफट से निपटाना है भाई साहब, क्विक। ओके, इफ AD is not equal to BC then prove that the equation has no real roots, ठीक है भाई साहब। यहाँ पे आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2ac प्लस bd इंटू x प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सॉरी c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका भाई साहब कोई रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, ऐसा आपको प्रूव करना है, ठीक है। देन प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। अभी भाई साहब इसको आप कंपेयर कर लो किसके साथ, एक कैपिटल, क्योंकि देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, स्मॉल a के साथ कंपेयर करना यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो यू कंपेयर्ड विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 2ac प्लस bd, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये सब कैपिटल में है, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी भाई साहब अगर आप यहाँ पे देखोगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये b स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 आता है तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, ठीक है। नो रियल रूट्स कब होगा, जब b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो करके देखते हैं भाई साहब, b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 इंटू ac प्लस bd, ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, c दैट इज c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस यहां पे हो गया आपका 2ac bd, ठीक है, माइनस 4 इंटू
ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो गया आपका 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8 ए सी बी डी माइनस यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना भाई साहब। 4 को आपने सबसे मल्टीप्लाई किया, अभी देखो 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी आपका भाई साहब यहाँ पे है क्या, आपका हो गया भाई साहब माइनस 8 ए सी बी डी, ठीक है, 8 ए सी बी डी, और ये हो गया माइनस 4 ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं भाई साहब, ठीक है, 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, माइनस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना बचेगा बोलो, 2 ए सी बी डी प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल हम, ठीक है। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं अपन, -4 इंटू ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं भाई साहब। ये स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, ओके। अभी ध्यान से देखना इसमें, ठीक है, ये वाला आपका क्या है, स्क्वायर टर्म है, और स्क्वायर टर्म किसी भी नेगेटिव का भी पॉजिटिव होगा। अगर आपने -2 का स्क्वायर भी किया तो भी कितना आएगा, 4, ठीक है। तो हम यहां पे आपका फाइनल रिजल्ट कितना आया, -4 इंटू ए डी प्लस बी सी का स्क्वायर, ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होना ही होना है, ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, है ना भाई साहब। समझ में आ रहा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये नेगेटिव हो गया मतलब लेस देन 0 हो गया, मतलब आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी इज लेस देन 0, ठीक है। सो देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका भाई साहब कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता है ये, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आसान सा सवाल है, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। डन डन डन। 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation 4x square minus 2px plus k is equal to 0 has equal roots, ठीक है। Find the value of k. So 2 is a root of the quadratic equation. तो यहाँ पे भाई साहब कैसे आप k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 2 is a root of the quadratic equation and the quadratic equation has equal roots, find the value of k. बताइए कैसे करेंगे भाई साहब। पहले यहाँ पे देखो fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है भाई साहब 3x स्क्वायर प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। पहले अपने को ना p की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो fx मतलब अगर 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब f2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर जहां पे x है वहां पे हम 2 डालेंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो दैट विल बी हाउ मच, 4 3 12 प्लस 2p माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 कितना हो गया 4, 2p प्लस 4 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका 2p इज इक्वल टू -4, सो देयरफॉर p इज इक्वल टू -2। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ठीक है, p की वैल्यू कितनी हो गई -2। ठीक है, अभी यहां पे हमको क्या दिया जा रहा है, सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन में। कौन सा इक्वेशन? देखो 4x² माइनस 2px प्लस k इज इक्वल टू 0। इस पे अगर अपने p की वैल्यू डाली तो कितना हो जाएगा बोलो? ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है बोलो? -2, x प्लस k इज इक्वल टू 0, सो दैट विल बी हाउ मच? 4x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। क्या ये मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 4x² प्लस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसका भाई साहब इक्वल रूट्स है, ये बताया गया आपको। इक्वल रूट्स की सिचुएशन कब होती है? सो हम इक्वल रूट्स की सिचुएशन कब होगी? फटाफट b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 जब हो जाए। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे सवाल को कैसे घुमाकर करना है भाई साहब, वी हैव टू बेसिकली बी अ वेरी, तो यहाँ पे आपका k इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, इस पे अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू फटाफट लिख लीजिए, b 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी हो गई? 4, c की वैल्यू हो गई भाई साहब k, है ना? a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू हो गई भाई साहब k। ठीक है, ओके, अभी आपका फॉर इक्वल रूट्स b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू k इज इक्वल टू 0, तो 16 माइनस 16k इज इक्वल टू 0, तो 16 इज इक्वल टू 16k, तो देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गई? 1, k की वैल्यू हो गई 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। समझ में आ रहा है भाई साहब? दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है एज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन इन मार्च 2020 फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। चलिए इस सवाल को करना है। क्या दिया हुआ है देखो, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर किलोमीटर। 2 स्क्वायर हैं, उनका एरिया को अगर हम ऐड करें तो इतना आ रहा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स इज 16 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। ठीक है, इनके पेरीमीटर में डिफरेंस कितना है? 16 मीटर का। ठीक है, तो एक भाई साहब आपका स्मॉलर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और एक भाई साहब लार्जर स्क्वायर हो गया लेट्स से। ठीक है, ओके, तो स्मॉलर स्क्वायर का, ठीक है, लेट्स से हमने मान लिया भाई साहब ये x है, ये x हो जाएगा, तो ये वाला भी भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? x। ठीक है, ओके, तो लेट साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर बी x। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, बोलो भाई साहब कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अरे भाई साहब पेरीमीटर कितना होता है? x प्लस x प्लस x प्लस x, दैट इज 4x। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 4x। ठीक है, नाउ इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, मतलब इसका पेरीमीटर इससे कितना ज्यादा होगा? 16। ठीक है, सो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ लार्जर स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो 4x प्लस 16। ठीक है, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू एक्स प्लस 4, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है ये? 4 इंटू एक्स प्लस 4। अभी मुझे बताइए इसका साइड का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे भाई साहब देखो, अगर तुम्हारा साइड x है तो पेरीमीटर कितना है? 4x है। उल्टा चलो, अगर 4x है तो साइड कितना हो गया? x। अगर 4 इंटू एक्स प्लस 4 है तो साइड कितना हो जाएगा? x प्लस 4। क्या ये समझ में आ रहा है? उल्टा चलो, उल्टा देखो, यहां पे अगर तुमने x माना है इसका, तो इसका पेरीमीटर कितना हो गया? 4x। उल्टा चलो, अगर इसका पेरीमीटर 4x है तो साइड कितना हो गया? x। अगर दूसरे वाले का 4 इंटू एक्स प्लस 4 है तो साइड कितना हो जाएगा? x प्लस 4। ठीक है, सो देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? साइड ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज हाउ मच? x प्लस 4। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच? दिस विल बी x प्लस 4।
ठीक है, ये वाला भाई साहब आपका कितना हो जाएगा x प्लस 4। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स, ठीक है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो आपके भाई साहब अभी हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा बोलो, x का स्क्वायर, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 4 का स्क्वायर। अभी इन दोनों का सम, x का स्क्वायर x प्लस 4 का स्क्वायर, सम ऑफ द एरियाज इज हाउ मच, 400 स्क्वायर किलोमीटर। ये बन गया आपका इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो पहले आपने पेरीमीटर को पकड़ा, पेरीमीटर से भाई साहब साइड निकाला, साइड से फिर उसका स्क्वायर करके आप एरिया निकाल रहे, ठीक है। ओके, सो दिस वन विल बी हाउ मच, x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, a प्लस b का होल स्क्वायर कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 400, ठीक है। ओके, मुझे मैं जो भी स्टेप्स कर रहा हूं, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे ये आंसर आया, प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। यहां पे कितना हो गया बोलो, 2x स्क्वायर प्लस 8x एंड दिस विल बी हाउ मच, 16 माइनस 400, दैट विल बी हाउ मच, 384 माइनस 384 इज इक्वल टू 0। पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब 2 से, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। अभी 192 का करेंगे आप फैक्टराइजेशन ताकि आपको मिले 4, ठीक है। तो ये हो गया 192, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। क्लियर है? आपको कितना चाहिए भाई साहब, 4 चाहिए। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो रहा है भाई साहब, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 16 माइनस 12 आपको क्या दे देगा भाई साहब, 4x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, x स्क्वायर प्लस, इसकी आदत डालिए। आपको लग रहा होगा कि अरे बहुत आसान है भाई साहब, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे ना तो प्रॉब्लम होगा। जितना आप फैक्टराइजेशन की आदत डालेंगे उतना आपके लिए इजी पड़ेगा, वरना ऑल ऑफ अ सडन इफ यू आर गिवन अ सम यू विल goof up, ठीक है। 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, x इंटू एक्स प्लस 16 माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो आपका यहाँ पे हो गया भाई साहब x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, आइदर आपका हो गया भाई साहब x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस 16। नाउ x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 16 एज साइड ऑफ अ स्क्वायर, साइड कैन नॉट, किसी भी चीज का भी साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। सो देयरफॉर आपका ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो अपन बोलेंगे भाई साहब आपका साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज हाउ मच, x, दैट इज हाउ मच भाई साहब 12 मीटर्स, एंड बिगर स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 4, ठीक है ना, यही निकाला था हमने, x प्लस 4 दैट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16 मीटर्स, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, if one is a root of the quadratic equation and the quadratic equation has equal roots, find the value of b। चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, फटाक से। Then people, if one is the root of the quadratic equation and the quadratic equation has equal roots, बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह देखो, पिछले वाले, one is the root of the quadratic equation, तो मतलब f(x) की वैल्यू लेट से कितनी है, 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब तिवारी क्या होगा बोलो, 1 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, तो इससे अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, तो f1 की वैल्यू क्या होगी भाई साहब, 0 होगी, ठीक है।
f1 की वैल्यू मतलब यहाँ पे 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 माइनस 2 दिस विल बी इक्वल टू 0. So you get 3 plus a minus 2 is equal to 0. That gives you how much? A plus 1 is equal to 0. a की वैल्यू कितनी हो गई? -1. Are we clear to this one people? a की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -1. ठीक है. अभी आपको दूसरा वाला इक्वेशन दिया हुआ है, देखो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी. ठीक है, तो ये दूसरा वाला इक्वेशन a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी इज इक्वल टू 0. तो अभी भाई साहब आप मल्टीप्लाई कर लो इसको. ठीक है, a की वैल्यू डालो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -1 इन द अबव इक्वेशन. यहां पे कितना हो जाएगा बोलो? -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस बी इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है? कितना आ रहा है बोलो यहाँ पे? दिस विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x. ठीक है, माइनस बी इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस बी इज इक्वल टू 0. इसको भाई साहब -1 से मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, ओके. कितना हो गया बोलो यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस बी इज इक्वल टू 0. यहाँ पे अभी आपको क्या बोला जा रहा है? हैज इक्वल रूट्स. तो यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे किसके साथ भाई साहब? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो आपका भाई साहब ए का वैल्यू कितना हो गया? 1. बी का वैल्यू कितना हो गया? 6. और सी का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? बी. समझ में आ रहा है ये? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू बी इज इक्वल टू 0. 36 माइनस 4b इज इक्वल टू 0. तो -4b की वैल्यू कितनी हो गई? -36. सो देयरफॉर b की वैल्यू -36 बाई -4 कैंसिल हो गया. ठीक है, b इज इक्वल टू 9. ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्या हो गया? हाँ, करेक्ट. यस ही इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपका c का वैल्यू -b होगा. तो जब लिख रहा था तभी क्यों नहीं बोला? c का वैल्यू यहाँ पे -b होगा. ठीक है, टन नहीं, ये -b को अपन ने -1 से मल्टीप्लाई किया ना. -b था, देखो यहाँ पे -1 डाला, a का वैल्यू निकाला हमने -1, तो -1 डाला इधर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये -b आया इज इक्वल टू 0. इसको अपन ने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्लस भी हो गया ना. समझ में आ रहा है ये? नो, इट इज करेक्टम. तो c इज इक्वल टू b ही रहेगा. b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब कितना हो जाएगा आपका? 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू b इज इक्वल टू 0. तो 36 माइनस 4b इज इक्वल टू 0. 36 इज इक्वल टू 4b. तो b की वैल्यू हो जाएगी 36/4. तो b की वैल्यू हो गई भाई साहब 9. b की वैल्यू हो गई भाई साहब 9. क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके. चलो भाई साहब, 2023 का एकदम ताजा सवाल 4, 5, 6 मार्क्स वाला सीबीएसई का सवाल है भाई साहब. केस स्टडी व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक, a teacher asked the student that the length and the width of particular photo is increased by x units each to double the area of the photo. तो आपका भाई साहब एक स्कूल फोटो है. ठीक है, while designing the school year book, a teacher asked the student that the length and width of a particular photo is increased by x units. इधर भी x units और इधर भी x units को इंक्रीज किया गया. ठीक है, the original photo is 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड. जो पहले वाला फोटो था वो 18 और ये 12 था इसका साइज. टीचर ने x इंक्रीज करने के लिए बोला. ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. राइट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन डिपिक्टिंग द अबव इंफॉर्मेशन. भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा? द ओरिजिनल फोटो. तो आपका भाई साहब अभी लेंथ कितना हो जाएगा? देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, पर्टिकुलर इंक्रीज बाय x डबल द एरिया ऑफ द फोटो. एरिया ऑफ द फोटो डबल हो गया है. ठीक है, तो ओरिजिनल एरिया कितना है? बच्चा पार्टी बोलना है. ओरिजिनल एरिया, अरे बोलो ना बच्चा पार्टी, कितना होगा? 12 इंटू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि नहीं? 12 इंटू 18 कितना आ रहा है? 18 दूनी 36. हाँ,
216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, अभी देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, द ओरिजिनल फोटो इज 18 centimeter, the length and width. Ask the student that the length and width of a particular photo is increased by x units to double the area of the photo. To double the area of the photo. अभी न्यू एरिया कितना हो गया, डबल, न्यू एरिया डबल ऑफ द ओरिजिनल एरिया, मतलब 2 into 216। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिया हुआ है ना भाई साहब, ये लेंथ को आपने दोनों तरफ से इंक्रीज किया तो एरिया आपका डबल हो गया। पहले आपने ओरिजिनल एरिया को फाइंड आउट किया, कितना है भाई साहब, 216, अभी यहां पे आपका डबल हो रहा है, मींस 2 into 216, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी भाई साहब आपको यहां पे एल्जेब्रिक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो यहां पे, इसका मतलब न्यू एरिया तो ये हो गया न्यू एरिया इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब अभी बताओ मेरे को लेंथ कितना हो गया, x प्लस 18, और ब्रेथ कितना हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ ना, ब्रेथ कितना हो गया भाई साहब, x प्लस 12, ठीक है। इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो आपका भाई साहब पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस 18 इंटू x प्लस 12 इज इक्वल टू 432। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी कितना होता है भाई साहब, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, that will be equal to x square plus a plus b into x plus ab, ये होगा ना भाई साहब, ठीक है। सो यहां पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी x square plus 18 plus 12 that is 40x 30 ना, सॉरी ये हो गया भाई साहब आपका 30x, x स्क्वायर प्लस 18 प्लस 30x प्लस 18 इंटू 12 कितना हो गया भाई साहब आपका 216, अभी आपने मल्टीप्लाई किया था, इज इक्वल टू 432। सो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर प्लस 30x, 216 माइनस 432 विल बी 216 ओनली, ठीक है, क्योंकि इसका डबल ही है, माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अभी भाई साहब 216 का आप निकाल लीजिए एलसीएम, 2 10s are 20, 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 27s are 3 9s are 3 3s are 3 1s are, ठीक है। 30x लाना है भाई साहब, कैसे करेंगे बोलो भाई साहब, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 2 2s are 4, 4 2s are 8, नहीं हो रहा भाई साहब, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 2 2s are 4, 4 3s are 12, हो रहा भाई साहब, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 into 18, ठीक है। तो आप भाई साहब 30 को क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस 18, 30x 12x प्लस 18x, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 12x होगा, दूसरा क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, x प्लस 18x माइनस 216 हो जाएगा, तो आपका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा, ठीक है। सो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको कुछ और कॉम्बिनेशन निकालना पड़ेगा। 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, तो 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, 3 2s are 6, हाँ ये हो सकता है, देखो ठीक है, देखो 3 3s are 9, ठीक है, समझ में आ रहा है वैसा भी, ये पहला वाला कॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो सकता है, देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैंने पहला वाला कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है बोलो, लेट्स से 12x डाला आपने, और यहाँ पे आपने डाला भाई साहब कितना 18x माइनस 216, जब भी यहाँ पे एक प्लस है और यहाँ पे एक माइनस है ना, तो नहीं हो पाएगा। अभी अगर आप यहाँ पे निकालोगे तो कितना है, x प्लस 12, यहाँ पे अगर आप निकालोगे 18 को कॉमन निकाला तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये जो x प्लस 12 है और ये x माइनस 12 है, ये कॉमन फैक्टर बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको अपन नहीं ले सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वरना अगर आप ऐसे कर दोगे तो कॉमन फैक्टर ही नहीं निकलेगा, वैल्यू नहीं निकलेगी आपका, या तो दोनों भी x माइनस 12 हो या तो दोनों भी x प्लस 12 हो, तभी जाकर होगा ये, समझ में आ रहा है ये, वाई यू कैन नॉट सिलेक्ट, although combination is there but you cannot select this combination. So now we have to move to a different thing. 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36, और यहाँ पे 2 and 3, समझ में आ रहा है भाई साहब, 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अपन ऐसा कर सकते कि नहीं, यहाँ पे 36 इज इक्वल टू 36 माइनस 6, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 36x minus 6x minus 216 is equal to 0. So this was how much? X into x plus 36 minus 6 into x plus 36 is equal to 0. So यहाँ पे हो गया आपका x plus 36 into x minus 6 is equal to 0. So either आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x plus 36 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0. That is x is equal to minus 36 और x is equal to 6. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, x is equal to 6. तो आपका राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने भाई साहब देखो पहले तो अपन ने ये किया, देखो 1 का इक्वेशन ये हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा ये, सेकंड का आंसर ये हो जाएगा, राइट द इक्वेशन इन द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फॉर्म. व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशंस ऑफ द एनलार्ज फोटो. तो आपका भाई साहब यहां पे हो गया कितना, तो न्यू डायमेंशन, व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन. तो न्यू डायमेंशंस आपके क्या हो जाएंगे, न्यू डायमेंशंस आपका हो गया x प्लस 18. कितना आया भाई साहब आपका, x की दो वैल्यूज कितनी आ गई, हाँ, तो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 36 एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, एज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव. सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 6. ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 6, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा x इज इक्वल टू 6. तो न्यू डायमेंशंस देखो यहाँ पे क्या हो गया 6 प्लस 18, तो ये हो गया कितना भाई साहब 24 सेंटीमीटर. और क्या हो गया बोलो x प्लस 12, तो ये हो गया 6 प्लस 12 दैट इज 18 सेंटीमीटर. ठीक है, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x मेक द न्यू एरिया इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, देखो यहां तक तो खत्म हो गया, ये समझ में आ रहा है भाई साहब. ठीक है, आपसे जो भी पूछा ये थर्ड का आंसर आ गया भाई साहब. न्यू डायमेंशंस क्या हो गए 24 और 18. ठीक है, आपसे यहां पे पूछा जा रहा है कि क्या एरिया आपका 222 सेंटीमीटर हो सकता है. कैन एनी रैशनल वैल्यू, देखो जब आप एरिया कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपका 220 सेंटीमीटर क्या ये हो सकता है. कैन एनी वैल्यू मेक इट इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. अरे भाई साहब 220 को तुम डिवाइड करो ना, कितना आएगा देखो, 2 11 जा, 2 55 जा, 5 11 जा, 11 1 जा. समझ में आ रहा है ये. ठीक है, बताओ मुझे क्या ऐसा कोई वैल्यू आप x का ले सकते हैं जिससे आपका 220 सेंटीमीटर आए. मतलब कैसा है देखो, कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x मेक्स द एरिया इक्वल टू 220. मतलब यहां पे क्या है देखो, ये वाला जो सिचुएशन है आपका, देखो ये वाला सिचुएशन है, लेट्स से आपने यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 216 ये किया ना आपने, इसकी वैल्यू कितनी 220. क्या ये समझ में आ रही है. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x कितना -4 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे कि नहीं सोचो. ठीक है, देखो यहां पे कंपेयर करो इसके साथ, क्या है ax स्क्वायर, यही पूछा है ना भाई साहब. देखो समझ लो तुमने x प्लस 18 और x प्लस 12 लिया, इनका प्रोडक्ट अभी कितना आना चाहिए 220. तो यहां पे तुमसे पूछा है कि कैन एनी रैशनल वैल्यू ऑफ x मेक द एरिया इक्वल टू 220. तो भाई साहब यहां पे करके देखो, अगर 220 मारा तो 216 माइनस 220 हो गया -4. ठीक है, क्या -4 के किसी कॉम्बिनेशन से तुमको, अच्छा चलो ऐसा मान लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, b a की वैल्यू कितनी बोलो 1, b की वैल्यू कितनी बोलो 30, c की वैल्यू कितनी बोलो -4, b स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 30 का स्क्वायर -4 इंटू a दैट इज 1 इंटू c दैट इज -4. ठीक है, कैन एनी रैशनल वैल्यू मेक द एरिया इक्वल टू, तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा बोलो 900 का स्क्वायर. ठीक है, दिस विल बी हाउ मच 900 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 4 4 जा 16. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, तो कितना हो गया बोलो b स्क्वायर माइनस 4ac दिस विल बी 916. तो आपका b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट कितना हो जाएगा 916. 916 एक स्क्वायर नंबर नहीं है. ठीक है, क्यों नहीं है, 30 स्क्वायर का आता है भाई साहब 900, 31 स्क्वायर का कितना आएगा बोलो
31 इंटू 31, ये हो गया आपका 31, और यहाँ पे होगा 3 1 3 3 3 9, तो 961। तो ऑब्वियसली 916 जो बीच में आता है इसकी रैशनल वैल्यू नहीं निकलेगी, ये इरैशनल होगा, इसीलिए भाई साहब यहाँ पे नो, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब आपका नो, ठीक है, क्योंकि ये आपका इरैशनल देगा आपको वैल्यूज, ठीक है, इट इज गोइंग टू गिव यू इरैशनल वैल्यूज, ठीक है। सो वी विल गेट इरैशनल वैल्यूज ऑफ x। समझ में आता हूं भाई साहब? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 2020 का सवाल है, फटाक से करना है इसको, फटाक से। If one root of the quadratic equation is half the other root, then show that b square is equal to 9ac by 2। आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आ चुका है 2020 में, ठीक है, ओके। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है देखो, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वन रूट इज अल्फा, ठीक है, अदर रूट बीटा, अल्फा इज हाफ ऑफ द अदर रूट, तो मतलब लेट्स से हाफ ऑफ अल्फा, है ना, तो दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, अल्फा बाई 2। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। देन शो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9ac बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। वन रूट, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा हो गया, ये हो गया आपका बीटा, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर वन, अल्फा एंड अल्फा बाई 2। समझ में आता है पीपल, ठीक है। दो जो आपके रूट्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, अल्फा एंड अल्फा बाई 2, ओके। सम ऑफ द रूट्स विल बी हाउ मच, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विल बी हाउ मच, सी बाई ए। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। करिए भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है कि नहीं भाई साहब। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी हाउ मच, इससे कुछ होगा नहीं यार, चलिए करते हैं यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो आपका यहाँ पे भाई साहब 3 अल्फा बाई 2 कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2b बाई 3a। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो अल्फा की वैल्यू इस 2 को इधर लेके जा रहे हैं, इस 3 को इधर लेके जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को मालूम है अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 विल बी माइनस बी बाई ए, तो 2 अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 विल बी माइनस बी बाई ए, तो 3 अल्फा बाई 2 विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 2b बाई 3a। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ठीक है, ओके। अब अभी हमारा आता है भाई साहब अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c बाई ए। तो अल्फा इंटू अल्फा इंटू अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू c बाई ए। क्या ये समझ में आ रहा है, इधर कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c बाई ए। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 2 को इधर ले लिया हमने, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे कर लो माइनस 2b बाई 3a का स्क्वायर, ठीक है। पुटिंग the value of alpha in above equation from 1। तो लेट्स से ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, क्लियर है। तो इसका अल्फा का स्क्वायर मतलब माइनस 2b बाई 3a का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2c बाई a। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, दिस विल बी 4b का स्क्वायर अपॉन 9a का स्क्वायर, that will be equal to 2c by a। ये a और ये a कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 18ac। समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर दो भाई साहब किससे, तो ये हो गया भाई साहब आपका b स्क्वायर इज इक्वल टू 18ac बाई 4, ठीक है। तो 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, देयरफॉर b स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 9ac बाई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस बनम पीपलम, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, क्लियर 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 पीपलम, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब सीबीएसई का सवाल, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर was 2.5 hours more than the time taken in the return journey. If we returned at a speed of 10 km per hour more than the speed while going, find the speed in each direction, ठीक है।
इसको अपन आराम से साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे रेसिप्रोकल वाला मामला आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पीड मानेंगे तो आपका टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसे आपका वेरिएबल रेसिप्रोकल में जाता है ना, मतलब x जैसे ही आपका रेसिप्रोकल में चला जाता है, ऑलवेज टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। एक मिनट कीजिए जरा इसको फटाफट। ओके, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर्स। तो भाई साहब 150 किलोमीटर दौड़ा ये इंसान, देखो 150 किलोमीटर, ठीक है। द टाइम टेकन टू कवर 150 किलोमीटर्स वॉज कितना भाई साहब, 2.5 आवर्स, ठीक है। T1 इज इक्वल टू भाई साहब 5/2 लिख सकते हैं, है ना भाई साहब, 5/2 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन रिटर्न ऑफ द जर्नी, ठीक है। तो लेट्स से टाइम T2 रिटर्न जर्नी है भाई साहब, ठीक है। इसका हमने मान लिया भाई साहब x, तो जाने में कितना टाइम लगेगा, x प्लस 5/2, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये लिखा हुआ है ना, द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन टू रिटर्न फॉर द जर्नी। अभी 150 किलोमीटर एक साइड ही है कि दोनों साइड मिलाकर, the time taken by a person to cover 150 kilometers was 2.5 hours more than the time taken to return in the journey। तो आपका भाई साहब यहाँ पे जावन का 75 और आवन का 75 होगा, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। 75 इधर और 75 इधर, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अगर आवन का कितना हो गया x, तो जावन का कितना होगा भाई साहब x प्लस 5/2, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। इफ वी रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड वाइल गोइंग, ठीक है। तो आप बताइए भाई साहब यहां पे स्पीड कितना है, स्पीड आपका स्पीड को मानना पड़ेगा यार, चलो। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं, लेट्स से ये टाइम T1 है, ठीक है, ये टाइम T2 कितना हो जाएगा, T1 प्लस 5/2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेट द स्पीड while going be x, while going be x किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे भाई साहब आपके जाने का स्पीड कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आने का स्पीड कितना हो जाएगा, देयरफॉर द स्पीड while रिटर्निंग कितना हो जाएगा, इस कितना हो गया, इफ वी रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड, तो x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आ रहा है, जाने का स्पीड कितना हो गया x, आने का स्पीड कितना हो गया x प्लस 10। तो बताओ मेरे को यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर समझ लो ये लेट्स से ये T1 है, ये T तो लेट्स से ये है भाई साहब आपका T1, ये आपका T2, T2 की वैल्यू अगर T है तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T प्लस 5/2, है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे T2 की वैल्यू कितनी होगी, T2 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहां पे कितना है बोलो, 75 अपॉन स्पीड कितना है x प्लस 10, समझ में आ रहा है भाई साहब। T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, T प्लस 5/2 है ना भाई साहब। तो यहां पे T1 की वैल्यू कितनी होगी, 75/x, पहली बात तो ये है ना। सेम वही टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी तुम ये वाला इक्वेशन डालो यहाँ पे, ठीक है, T1 इज इक्वल टू T, तो आप भाई साहब यहाँ पे T1 दैट इज 75/x, ये T1 हो गया, इज इक्वल टू T, T की वैल्यू कितनी है भाई साहब, T की वैल्यू हो गई यहाँ पे 75/x प्लस 10 प्लस 5/2, ठीक है, क्लियर है, ये आपका इक्वेशन बन गया, ओके। तो भाई साहब इसको इधर कर लो, तो ये हो गया आपका 75/x माइनस 75/x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/2। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 75, ये हो गया 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना बोलो 75, और ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 10, 75 इंटू एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे हो गया आपका x प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/2, 5 1 जा 5, 5 15 जा 75, तो ये हो गया आपका कितना 15, और ये x और x हो गया आपका कैंसिल, ये हो गया 10 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2।
तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 150 इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 10 इंटू 1, तो आपका कितना हो गया बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये हो गया आपका कितना 300। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, समझ में आता है भाई साहब? ठीक है, अभी 300 के फैक्टर्स में से आपको क्या निकालना है, 10 निकालना है। ठीक है, क्या हो जाएगा बोलो 20 नहीं 30 2 150s are 275s are 325s are 5 5s are 5 1s are okay 5 5s are 25 3 2s are 6 6 2s are 12 5 3s are 15 5 2s are 10 10 2s are 20 नहीं होगा भाई साहब ये 5 3s are 15 15 2s are 30 5 2s are 10 ये हो रहा है ना भाई साहब? नहीं 5 3s are 15 15 2s are 30। अरे 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 ये तो क्या हो गई भाई साहब? तो 20 15 देखो यहाँ पे ये साला बहुत गड़बड़ कर रहा है भाई साहब। यहाँ पे टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर वाज 2.5 आवर्स मोर देन द टाइम टेकन इन द रिटर्न जर्नी। ये 150 किलोमीटर होगा भाई साहब, 75 नहीं होगा। ओके ये आपका 150 होगा, दिस विल बी 150 और ये वाला भी आपका 150 टा 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 टा। तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना, दिस विल बी 150। सो ये हो गया आपका 150 बाई एक्स और ये हो गया 150 बाई एक्स प्लस 10। तो भाई साहब यहाँ पे अब की सवाल क्या बन रही है? That's going to be how much? 150 by x plus 10 ठीक है प्लस 5 by 2 ठीक है इज इक्वल टू 150 by x। तो 150 by x माइनस 150 by x plus 10 is equal to 5 by 2. So that's going to be how much people? That's going to be x into x plus 10, यहाँ पे हो गया आपका 150, इसको अगर हमने कॉमन लिया तो x plus 10 माइनस x इज इक्वल टू 5 by 2। 5 1 जा 5 5 30 जा ठीक है, ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 30 इंटू 10 हो गया 300 x इंटू एक्स प्लस 10, सो दैट विल बी 1 by 2। सो दैट्स इक्वल टू यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई किया तो x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 600। So that will be x square plus 10x minus 600 is equal to 0। 30 into 20 है ना 600 हो जाएगा, तो x square plus 30x minus 20x minus 600 is equal to 0। x into x plus 30 minus 20 into x plus 30 is equal to 0। ठीक है, क्लियर हम बच्चा पार्टी? कितना हो गया भाई साहब यहाँ पे, दिस विल बी x प्लस 30 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो आइदर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो आइदर यहाँ पे क्या हो रहा है x की वैल्यू माइनस 30 और x की वैल्यू कितनी हो गई 20। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? नाउ स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आपका भाई साहब स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो x की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 30। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, ओके फाइंड द स्पीड। तो वाइल गोइंग स्पीड कितना हो गया भाई साहब आपका, वाइल गोइंग स्पीड इज आपका हो गया भाई साहब 20 किलोमीटर्स पर आवर
and while coming back, while coming, speed is 20 प्लस कितना हो गया भाई साहब, कितना बढ़ाया इसने 10, 20 प्लस 10 दैट इज 30 किलोमीटर्स पर आवर। समझ में आता है बच्चा पाड़ी? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब ये करना है, 460 is divided by a natural number then the quotient is 2 more than 9 times the divisor। ठीक है, आपने भाई साहब क्या किया है, 460 को क्या किया है, डिवाइड किया है किसी नेचुरल नंबर से, x से, तो यहाँ पे एक क्वोशंट आएगा और यहाँ पे आएगा भाई साहब एक रिमाइंडर। ठीक है, तो जब भी आप डिवाइड करते हैं, जैसे हमने आपने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2s ऑफ लेट्स से हाँ थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम अपन। ठीक है, सो लेट्स से अगर आपने किया यहाँ पे लेट्स से 7 को डिवाइड किया आपने 2 से, 3 जा 6 1, तो 7 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 1, तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या गया, लेट यहाँ पे हम बोलते हैं डिवाइजर बी एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिविडेंड दैट इज 460 can be written as divisor that is x into quotient plus remainder। ठीक है, 460 divided by natural number then the quotient is 2 more than 9 times the divisor। तो quotient यहाँ पे क्या है बोलो, quotient is equal to 2 more मतलब 2 plus 9 times the divisor, 9 into x ये हो गया आपका quotient that is 9x plus 2 ये हो गया आपका quotient। ठीक है, and the remainder is 5, remainder की वैल्यू क्या डाल सकते हो भाई साहब 5, अभी आप यहाँ पे डाल दो। ठीक है, तो this will be how much, 460 is equal to x into quotient, quotient की वैल्यू कितनी आई है 9x plus 2 और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 5। अब इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे कितना है आपका 460। ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 2x 5 माइनस 460 ये कितना हो गया -455 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आर वी क्लियर? 9x स्क्वायर, अरे हाँ 2x ही होगा ना ये, तो लंबा चला गया भाई साहब, 455, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 17 से जाता है ना ये, नहीं 7 से जाएगा ना, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा, तो इजी है भाई साहब, 7 प्लस 5 12, नहीं हो रहा भाई साहब, हाँ 3 इंटू 3, हाँ 455 इंटू 9, करेक्ट इंटू 3 इंटू 3, सॉरी, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, चाहिए 2 ना, 5 13 3 जा 39, 5 7 जा 35, 13 7 जा 91, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, नहीं हो रहा भाई साहब, तो आपके फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 5 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3, इसमें से अपन को क्या चाहिए 2 चाहिए, 7 13 जा 91, नहीं 39, हाँ हो रहा है ना, देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 और 13 इंटू 5 हो गया आपका 65, है ना, तो आपका भाई साहब ये 65 इंटू 63। ठीक है, तो इसको अपन अगर स्प्लिट करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -63x प्लस 65x माइनस 455 इज इक्वल टू 0। तो 9x को बाहर निकाला, x माइनस 7 प्लस 65 इंटू x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 9x प्लस 65 हो गया ये, और ये हो गया आपका कितना x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, समझ में आता हूं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सॉरी, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इधर 9x प्लस 65 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0,
है ना भाई साहब, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी -65/9 और x की वैल्यू क्या हो गई 7, ठीक है। x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7, ठीक है। नाउ यहाँ पे भाई साहब अपन इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर। नाउ x -65/9 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। -65/9 इज नॉट इक्वल टू अ नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 ऐसा होता है, और यहाँ पे -65/9, तो अपन इस वैल्यू को नहीं ले सकते। तो देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू -65/9, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7। फाइंड द कोशेंट एंड द डिवाइजर। तो आपको यहाँ पे कोशेंट को फाइंड आउट करना है। कोशेंट की वैल्यू क्या है बोलो 9x + 2, है ना। सो दैट विल बी 9 × 7 63 + 2, दैट इज हाउ मच 65। कोशेंट की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 65, और डिवाइजर क्या है, डिवाइजर इज हाउ मच आपका 7, ठीक है। चाहे तो करके देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने 460 को डिवाइड किया, 460 को डिवाइड किया, आप किससे डिवाइड कर रहे हो भाई साहब 7 से। 7 5 × 30 7 6 × 42 7 6 × 42, ठीक है। यहाँ से 4 आया, 7 7 भाई साहब आपका कितने 7 5 × 35, तो आपका कितना आ रहा है रिमाइंडर देखो 5, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका देखो 5 आ रहा है, ठीक है। कोशेंट कितना आ रहा है 65। 65 को देखो आप लिख सकते हो यहाँ पे 9 × 7 63 + 2, तो ये बन रहा है बेटा बराबर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली करेक्ट, ठीक है। आप क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर सकते हो वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बच्चा बाड़ी।